Hello guys. So today we're gonna start with Companies Act 2013. Here in the foundation they have given a brief introduction about what companies are, what its features are. As you can see, what you will be able to study in this chapter. So it's written the company is a form of business. It features the corporate wealth theory, classes of companies under the act. So registration of companies, memorandum of association, memorandums of article. You'll understand what are all these types, how they are made, why are they made, etc. So see, here is the overview, like what all you gonna learn from this chapter. First of all, you're gonna learn the features like its separate legal entity, perpetual succession, limited liability, artificial judicial person, etc. Corporate will is like the company is different from its members, etc. etc. See, we'll not go now into the depth. I'll go topic by topic, but just take an overview ki why, how is a company formed, what types of share capital are there in the company, and what types of shares are there in the company with rights or without differential rights. What is the memorandum of association? Why does a company need to make a memorandum of association? Why does a company need to make an article of association? I'll be using Hindi, English, both languages as I prefer comfortable to myself. So we'll start with the introduction. See, generally this part is not applicable for your studying purposes. Just this is just to get you started with the chapter and understand its base, why, what is the Companies Act, why it was made, when it was made, what does it include. So we will just take a brief reading of it. So the introduction to the Companies Act. What is Companies Act? This is kind of the preamble of the Companies Act. The Companies Act was enacted to consolidate and amend the law relating to the companies. Okay, तो कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉस टू कंपनीज एक्ट, तो कंपनीज के जो रिलेटेड है वो सब लॉस को इकट्ठा करना है या उसको अमेंड करना है ड्यू टू, या उसमें कोई बदलाव लाना है ड्यू टू सर्टन कंडीशन चेंजेस इन द इवेंट्स और कंडीशंस, और फास्ट मूविंग इकोनॉमी के हिसाब से कोई चेंजेस लाना है. अभी कोई मेजर इवेंट्स हो गए जिससे कंपनी लॉ रेलेवेंट नहीं है या कंपनी लॉ डिफीट हो रहा है, जब उसका जो पर्पस है कि कंपनीज को मैनेज करना, उनको रेगुलेशन में रखना या शेयर होल्डर्स को प्रोटेक्ट करना, मेंबर्स को प्रोटेक्ट, वो नहीं हो रहा है, तो उसके लिए वैसे लॉस को कंसोलिडेट करने के लिए और वैसे लॉस को अमेंड करने के लिए कंपनीज एक्ट बनाया गया था. और वो प्रीसीड हुआ है कंपनीज एक्ट 1956 से. ना कंपनीज एक्ट 2013 के पहले भी एक कंपनीज एक्ट था 19 कंपनीज एक्ट बहुत सालों से. तो कंपनीज एक्ट 1956 था, वो तो पहले से था, बट उसके बाद उसको प्रीसीड किया किसने? कंपनीज एक्ट 2013. दिस इज नॉट वेरी रेलेवेंट फॉर योर स्टडिंग चैप्टर. जस्ट इतना समझ लो कि 2013 के पहले 1956 वाला कंपनीज एक्ट था. और ये सब क्यों हुआ? due to changes in national, international economic environment to facilitate expansion and growth of our economy. The central government, central government decided to replace Companies Act 1956 with new legislation, Companies Act 2013. और उसमें कितने sections है? 470 sections और 7 schedules. Don't worry, पूरे चैप्टर में ये सब नहीं आएगा. Just for information, there are 470 sections and 7 schedules in the Companies Act 2013. और वो डिवाइड हुए हैं 29 चैप्टर्स में. A substantial part of this act is in the form of companies rule. मतलब ये एक्ट में जो है ना, वो तुम्हारे सेक्शंस तो है ही, बट फर्दर तुमको रूल्स भी प्रोवाइड किए गए हैं एज एंड व्हेन देन रिक्वायर्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स या बाय द गवर्नमेंट की. भाई साहब ये सेक्शंस तो है ही, बट उसके साथ आपको ये पर्टिकुलर रूल्स भी फॉलो करने हैं और इनको भी ध्यान में रखते हुए आपको चलता है और आपको कंप्लायंसेस करने हैं. ओके, सो दिस इज नॉट ऑल रेलेवेंट, बट एक अंडरस्टैंडिंग के लिए है. So, what does the Companies Act 2000 aim to? Improve the corporate governance, simplify regulations, strengthen the interest of minority investors. अभी सब मेजर स्टेक होल्डर्स है, उनको तो उनके लिए तो लॉज है अभी किसी का 30%. So the introduction to the Companies Act. What is Companies Act? This is kind of the preamble of the Companies Act. The Companies Act was enacted to consolidate and amend the law relating to the companies. Okay, तो कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉस टू कंपनीज एक्ट, तो कंपनीज के जो रिलेटेड है वो सब लॉस को इकट्ठा करना है या उसको अमेंड करना है ड्यू टू, या उसमें कोई बदलाव लाना है ड्यू टू सर्टन कंडीशन चेंजेस इन द इवेंट्स और कंडीशंस, और फास्ट मूविंग इकोनॉमी के हिसाब से कोई चेंजेस लाना है. अभी कोई मेजर इवेंट्स हो गए जिससे कंपनी लॉ रेलेवेंट नहीं है
या कंपनी लॉ डिफीट हो रहा है, जब जिसका जो पर्पस है कि कंपनीज को मैनेज करना, उनको रेगुलेशन में रखना या शेयर होल्डर्स को प्रोटेक्ट करना, मेंबर्स को प्रोटेक्ट, वो नहीं हो रहा है, तो उसके लिए वैसे लॉस को कंसोलिडेट करने के लिए और वैसे लॉस को अमेंड करने के लिए कंपनीज एक्ट बनाया गया था। और वो प्रीसीड हुआ है कंपनीज एक्ट 1956 से। ना कंपनीज एक्ट 2013 के पहले भी एक कंपनीज एक्ट था 19 कंपनीज एक्ट बहुत सालों से। तो कंपनीज एक्ट 1956 था, वो तो पहले से था, बट उसके बाद उसको प्रीसीड किया किसने? कंपनीज एक्ट 2013। दिस इज नॉट वेरी रेलेवेंट फॉर योर स्टडिंग चैप्टर, जस्ट इतना समझ लो कि 2013 के पहले 1956 वाला कंपनीज एक्ट था। और ये सब क्यों हुआ? due to changes in national, international economic environment to facilitate expansion and growth of our economy. The central government, central government decided to replace Companies Act 1956 with new legislation, Companies Act 2013. और उसमें कितने sections है? 470 sections और 7 schedules. Don't worry, पूरे चैप्टर में ये सब नहीं आएगा। जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, देयर आर 470 सेक्शंस एंड 7 शेड्यूल्स इन द कंपनीज एक्ट 2013, और वो डिवाइड हुए हैं 29 चैप्टर्स में। अ सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ दिस एक्ट इज इन द फॉर्म ऑफ कंपनीज रूल। मतलब ये एक्ट में जो है ना, वो तुम्हारे सेक्शंस तो है ही, बट फर्दर तुमको रूल्स भी प्रोवाइड किए गए हैं एज एंड व्हेन देन रिक्वायर्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स या बाय द गवर्नमेंट की। भाई साहब ये सेक्शंस तो है ही, बट उसके साथ आपको ये पर्टिकुलर रूल्स भी फॉलो करने हैं और इनको भी ध्यान में रखते हुए आपको चलता है और आपको कंप्लायंसेस करने हैं। ओके, सो दिस इज नॉट ऑल रेलेवेंट, बट एक अंडरस्टैंडिंग के लिए है। So, what does the Companies Act 2000 aim to? Improve the corporate governance, simplify regulations, strengthen the interest of minority investors. अभी सब मेजर स्टेक होल्डर्स है, उनको तो उनके लिए तो लॉज है अभी किसी का 30%। The applicability of Companies Act 2013. Okay. सो द एप्लीकेबिलिटी, सो सर ये एप्लीकेबल किस पे है वो तो बताओ। अभी इतना बड़ा एक्ट बना है तो उसके लिए कंपनीज भी तो होगी जिस पे ये लागू होगा, सब कंपनीज पे नहीं होगा, बट दिस शोज अस द एप्लीकेबिलिटी कि किस पे एप्लीकेबल होगा, किस पे एप्लीकेबल नहीं होगा। सो सी, द द कंपनीज एक्ट 2013 shall be applicable on what? कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट बोले तो 2013 वाला एक्ट, और एनी अंडर प्रीवियस कंपनी लॉ। एनी अंडर प्रीवियस कंपनी लॉ मतलब 1956 या 1956 से लेके 2013 के बीच में जितने भी कंपनी लॉ बने हैं और उसके अंदर जितनी भी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है वो सब पे कंपनीज एक्ट 2013 लागू होगा। फिर इंश्योरेंस कंपनीज पे लागू होगा, एक्सेप्ट वेर वेर ये वर्ड ध्यान रखना है, ये वर्ड except where the provisions of the said act बोले तो Companies Act 2013, except where the provisions of the said act are inconsistent with the provisions of Insurance Act और IRDA Act। मतलब अगर कोई प्रोविजन है कंपनीज एक्ट का जो जो तुमको जो कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है, इफ तो ये इससे समझो, देखो, वेन एवर देर इज अ कॉन्फ्लिक्ट और ओवरलैप बिटवीन द प्रोविजंस ऑफ इंश्योरेंस एक्ट एंड कंपनीज एक्ट, द प्रोविजंस ऑफ इंश्योरेंस एक्ट और IRDA एक्ट will override those companies of the companies 2013। मतलब अगर अगर कंपनीज एक्ट या फिर इंश्योरेंस एक्ट, ये कंपनीज एक्ट है और ये इंश्योरेंस एक्ट है, ये दोनों के बीच में अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ, ओके, अगर कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो इंश्योरेंस एक्ट के जो सेक्शंस है या इंश्योरेंस एक्ट जो है वो प्रिवेल करेगा। मतलब इंश्योरेंस एक्ट लागू होगा, कंपनीज एक्ट लागू नहीं होगा, उसका मतलब यही होता है। हाँ, जहाँ 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 मैटर छोटे हैं वाह वाह कंपनीज एक्ट 2000 लगेगा, लेकिन जहाँ मैटर बड़े है या जहाँ इंश्योरेंस के आप जहाँ बेनिफिट ऑफ द कस्टमर है या बेनिफिट ऑफ डाउट है तो वहां वह इंश्योरेंस एक्ट लगेगा और IRDA एक्ट लगेगा। सेम गोज फॉर बैंकिंग कंपनीज, जहाँ जहाँ प्रोविजंस ऑफ द सेड एक्ट इनकंसिस्टेंट है वहां पे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट लगेगा। और ये सेम जाता है कंपनीज एंगेज इन जनरेशन और सप्लाई और इलेक्ट्रिसिटी, जहाँ जहाँ इलेक्ट्रिसिटी एक्ट है वहां वह इलेक्ट्रिसिटी एक्ट लगेगा, और इनकंसिस्टेंट है तो ये, वरना फिर जनरली कंपनीज एक्ट लगेगा। इसका मतलब समझो तुम, जनरली सब पे कंपनीज एक्ट लगेगा, जनरली ये सब पे कंपनीज एक्ट लगेगा, बट एक्सेप्शंस है इसके। ठीक है, एक्सेप्शंस क्या है कि जब दोनों के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट होगा ना, तो जो स्पेसिफिक कंपनी लॉ बनाया है, ये इंश्योरेंस एक्ट है या बैंकिंग एक्ट है या जो भी एक्ट है वो प्रिवेल कर जाएगा और कंपनी लॉ साइड में हट जाएगा, बोलेगा भैया मैटर मैटर आप संभाल लो, मैं चला। ओके, फिर एनी अदर कंपनी गवर्न्ड बाय स्पेशल एक्ट,
अभी हो सकता है कि कोई कंपनी बनी हो कंपनी लॉ के अंदर, बट सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, एक नया एक्ट बना दिया टू गवर्न या टू गवर्न दैट कंपनी, टू गवर्न दैट कंपनी, या उसको चलाने के लिए एक नया एक्ट बना दिया। तो वो जो कंपनी सेंट्रल स्पेशल एक्ट के अंदर भी गवर्न हो रही है ना, वो भी कंपनीज एक्ट के अंदर आएगी। और ठीक है, और बॉडी कॉर्पोरेट मतलब कुछ भी हो सकता है, बॉडी कॉर्पोरेट कंपनी में ही आ जाता है। इसका अपन आगे मीनिंग समझेंगे। विच आर इनकॉर्पोरेटेड बाय एन एक्ट। अभी बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड बाय एन एक्ट बोले तो देखो, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, ये एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, एयर इंडिया है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, सॉरी, ये सब एक स्पेशल एक्ट के अंदर बने हैं। ये कंपनीज को बनाने के लिए इनके स्पेसिफिक एक्ट्स तैयार किए गए हैं। ओके, स्पेसिफिक एक्ट्स तैयार किए गए हैं कि भाई तुम ये एक्ट में जो लिखा है उसके हिसाब से तुम्हारा फंक्शनिंग होगा। ओके, इसके हिसाब से तुम्हारा फंक्शनिंग होगा, बट तुमको कंपनीज एक्ट भी फॉलो करना है। और वो कैसे पता चलेगा? द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई ऑन दिस बिहाफ। सीजी बता देगा कि भाई इतना मानना, इतना नहीं मानना, ठीक है, इतना फॉलो, इतना नहीं फॉलो, वो तुमको क्लियर कर देगा कि हाँ, तुमको इतने इतने सेक्शंस एप्लीकेबल है, तुमको इतने सेक्शंस एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, ऑलवेज डन। देखो मैंने समरी इधर लिखा है, एप्लीकेबल किसको है? इनकॉर्पोरेटेड इन 1956, 2013 और एनी एक्ट बिटवीन देम, मतलब अंडर दिस कंपनी लॉ, एनी अंडर प्रीवियस कंपनी लॉ। ओके, मतलब बिटवीन देम में उसका आ गया। इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी, जनरेशन एंड सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एक्सेप्शन क्या? व्हेन द व्हेन द प्रोविजंस ऑफ द सेड एक्ट आर इनकंसिस्टेंट विद द इंश्योरेंस एक्ट, बैंकिंग एक्ट या इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, कंपनीज विच आर गवर्न बाय स्पेशल एक्ट। फिर अपन कंपनी के मीनिंग पे आ जाते हैं। ये दोनों मीनिंग है, ये जो दो मीनिंग है वो तुमको नहीं पढ़ना है उतना, उसका कुछ रेलेवेंस है नहीं। एंड आफ्टर ऑल इफ यू आर स्टडिंग कंपनीज एक्ट देन यू शुड नो द डेफिनेशन अंडर कंपनीज एक्ट। तो क्या है डेफिनेशन? द डेफिनेशन अंडर कंपनीज एक्ट क्या है? किसमें है? सेक्शन 2 सब सेक्शन 20। क्या है किसमें है? सेक्शन 2। याद रखना, हम कोई भी एक्ट होगा उसके सेक्शन 2 में क्या होगा? हमेशा डेफिनेशन। सेक्शन 2 will always have the definitions. Okay, section 2 will always have the definitions of the said act. कंपनीज एक्ट है तो उसमें भी सेक्शन 2 में हर चीज का डेफिनेशन रहेगा। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है तो उसमें भी सेक्शन 2 में हर चीज का डेफिनेशन रहेगा। तो सेक्शन 2 ऑफ द कंपनीज एक्ट डिफाइंस द टर्म कंपनी। व्हाट? कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी अंडर प्रीवियस लॉ। सर ये तो बोलेंगे वो एप्लीकेबिलिटी जैसा हो गया ना, तुम समझे नहीं। कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट, वो बॉडी कॉर्पोरेट भी हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, पर वो लोग क्या कहना चाहते हैं कि कंपनी जो है, हाँ, अगर तुमने 2013, 1956 या 2015 वाला एक्ट जो है उसके रूल्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन के हिसाब से तुमने अगर कंपनी बनाई तो वो कंपनी कहलाएगी। ओके, वो कंपनी कंपनी कहलाएगी, वरना वो कंपनी कंपनी नहीं कहलाएगी। तो अंडरस्टैंड करो इसको, ज्यादा डिटेल में मत पढ़ो, इतना याद रखो। मीन द कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी अंडर प्रीवियस कंपनी लॉ। ओके, एंड नाउ वी शैल मूव टू द फीचर्स ऑफ द कंपनी। फीचर्स क्या है? सेपरेट लीगल एंटिटी है, परपेचुअल सक्सेशन है, लिमिटेड लायबिलिटी है, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है। ओके, जुडिशियल या जुडिशियल एक ही होता है, वो सब अलग अलग सिनोनिम्स है, तो डोंट वरी, जुडिशियल या जुडिशियल बोल सकते हो, कुछ भी हो। नाउ वी कम टू द फर्स्ट पार्ट, सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी, ये सुन के कुछ लग रहा है क्या कि सेपरेट लीगल एंटिटी, ये सेपरेट, ये लीगल, ये एंटिटी? बोले सर सेपरेट लीगल एंटिटी सुना सुना तो है, पर कैसे? डिस्टिंक्टिव फीचर क्या है? सेपरेट लीगल एंटिटी मतलब कंपनी और उसके मेंबर्स। देखो इधर दिखाता हूँ तुमको, एक कंपनी जो है और उसके मेंबर्स, वो दोनों अलग अलग है। दिस इज अ होल डिफरेंट पर्सन, दीज आर होल डिफरेंट पर्सन। ओके, अपन बुक में से पढ़ते तो ज्यादा तुमको समझ में आएगा। The distinctive feature between the different form of organization and the most striking feature in the company form of organization, vis-a-vis मतलब in relation to। देखो मैंने इधर लिखा in relation to या counterpart, मतलब क्या होता है?
जो मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर है या सबसे अलग फीचर है जो अलग दूसरे फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी के बीच में, वो क्या है कि उसने एक यूनिक कैरेक्टर अक्वायर किया है ऑफ क्या, बीइंग अ सेपरेट लीगल एंटिटी, बीइंग अ सेपरेट अदर। उसका मतलब सर सेपरेट लीगल एंटिटी मतलब कंपनी इज रजिस्टर्ड, इट इज क्लोथड, रजिस्टर्ड मतलब एक्ट के अंदर तुमने सब रूल्स रेगुलेशंस फॉलो किया, एंड इट इज क्लोथड विद अ लीगल पर्सनैलिटी। अभी ऐसे देखने जाओगे तो ये कंपनी जो है वो एक ढांचा है, बट अगर तुमने एक्ट में उसको रजिस्टर किया तो ये एक इंसान बन गया, ये एक एंटिटी बन गया, समझे। ये एक इंसान, पूरा अलग इंसान बन गया, वैसे कि इसका एक अलग से सेपरेट एग्जिस्टेंस है, इसका एक सेपरेट एग्जिस्टेंस है। ओके, इट ऑलमोस्ट हैज द सेम राइट्स एंड द पावर्स एज अ ह्यूमन बीइंग। मैं वही बोला ना, एक अलग इंसान बन गया, भले नकली है, भले ये नकली है। मतलब सर ऐसे कैसे, तो वही तो है ना, वही तो इसका इंपॉर्टेंट फीचर है ना कि भाई तुमने इसको एक रजिस्ट्रेशन क्या किया, ये भाई अलग इंसान बन गया, रजिस्टर करवा के पूरा अलग इंसान, समझे। तो इट कैन, इट्स एग्जिस्टेंट इज डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट, यूनिक है, डिस्टिंक्ट मतलब यूनिक है और सेपरेट है, अलग है फ्रॉम इट्स मेंबर्स। मैंने वही बोला ना कि कंपनी और उसके मेंबर्स सब अलग है। ये कंपनी है, ये उसके मेंबर्स है, ये दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। कंपनी एक अलग आदमी है, ये एक अलग आदमी है। हम अलग है, कंपनी क्या बोलेगी, हम अलग है, मेंबर्स क्या बोलेंगे, हम अलग है, वैसा। तो separate, your company can own a property, have a bank account, raise loans, incur liabilities, enter into contracts। सर ये सब तो हम लोग भी करते हैं ना, तो वही तो है ना, इसके लिए तो वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी है ना, कि उसको एग्जिस्टेंस दिया है अपन ने उसको राइट दिया है कि भाई तेरे को एक लीगल पर्सनैलिटी मिलेगा, तेरे को सेम राइट्स एंड पावर्स मिलेंगे ऑफ बीइंग अ ह्यूमन बीइंग। तू अलग है एकदम उसके मेंबर से, तू एक अलग इंसान बन गया है, तू खुद की प्रॉपर्टी ओन कर सकता है, बैंक अकाउंट ओन कर सकता है, लोन ले सकता है, क्रेडिटर्स का पैसा ले सकता है, कॉन्ट्रैक्ट भी एंटर कर सकता है, समझे। अभी इसका ब्रेकडाउन देखते हैं अपन, तुमको इसमें ज्यादा समझेगा। इट इज एट लॉ, पर याद रखना ये अलग इंसान है, बट सिर्फ कहा डिफरेंट पर्सन, बट ओनली इन द आईज ऑफ लॉ। ओके, मतलब कैसा कि लॉ में ही, हाँ वैसे बाहर से देखने जाओगे ना तो ढांचा ही दिखेगा, सिर्फ बिल्डिंग ही दिखेगी या फिर सिर्फ पेपर ही दिखेगा, बट ये लॉ के वजह से तुमने उसको एक अलग इंसान का दरिया दिया है। अ पर्सन विच इज डिफरेंट फ्रॉम द सब्सक्राइबर्स टू इज मेमोरेंडम। मतलब अभी क्या होता है, कंपनी में ना एक मेमोरेंडम बनाते हैं, ऐसा एक कंपनी में ना ऐसा एक मेमोरेंडम बनता है, ऐसा नहीं बनता है, मतलब उसमें सब लिखा रहता है, उसका ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उसका कैपिटल कितना होगा, उसके मेंबर्स कितने हैं, फिर उसका रजिस्टर्ड ऑफिस किधर है, वो सब लिखा रहता है मेमोरेंडम, और वो आगे अपन दिखेगा डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस में। बट इतना समझ लो कि दिस इज द मेन डॉक्यूमेंट विच इज यूज्ड इन द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी। तुम इस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बिना बिना बनाए ना तुम कंपनी रजिस्टर नहीं कर सकते। तुम जब भी पोर्टल पे जाओगे ना रजिस्टर करने कंपनी, तो तुमको ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन चाहिए रहेगा। ओके, तो वो क्या है, जो जो सब्सक्राइबर होते हैं ना, कुछ लोग सब्सक्राइब करते हैं, ये मेमोरेंडम है ना, तो कुछ लोग बोलते हैं कि हाँ भाई, आई विल गिव माई मनी, आई विल गिव माई मनी टू कंपनी। ओके, अभी जो है ना वो सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम, अभी इन लोग ने सब्सक्राइब किया, अभी चलो सपोज अपन पब्लिक कंपनी ले लेते हैं, ठीक है, पब्लिक कंपनी में चाहिए 7 लोग, तो 7 लोग ने मेमोरेंडम के लिए सब्सक्राइब किया कि हाँ वी आर द प्रमोटर्स, वी आर सब्सक्राइबिंग फॉर द शेयर्स ऑफ दिस कंपनी, ठीक है। बट जब भी कंपनी इनकॉर्पोरेटेड हो जाएगी ना, तभी ये सब्सक्राइबर अलग और ये मेमोरेंड ये और ये कंपनी है वो अलग, ठीक है। सब्सक्राइबर अलग और कंपनी अलग। कंपनी इनकॉर्पोरेट होने के बाद फिर भाई तुम कौन, हाँ मैं अलग हूँ तुम अलग हो, वैसा। इट्स पर्सनैलिटी इज डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट फ्रॉम द पर्सनैलिटी ऑफ दोज हु कंपोज इट, समझे। अभी सलमान भाई ने कोई कंपनी बनाया, तो सलमान भाई का कंपनी और वो कंपनी अलग है, सलमान भाई इंसान अलग और उनकी कंपनी अलग। ऐसा नहीं कि सलमान भाई की कंपनी हो तो उनको भी भाईजान भाईजान करके बुलाए, नहीं, कंपनी का एक अलग एग्जिस्टेंस रहेगा, सलमान भाई का एक अलग एग्जिस्टेंस रहेगा। ओके, इवन द मेंबर्स कैन कॉन्ट्रैक्ट। अभी मेंबर्स बोले तो कौन, मेंबर्स मतलब वो जो उसके शेयर्स को सब्सक्राइब करते हैं।
आप कोई भी कंपनी के शेयर लेते हो या ट्रेडिंग करते हो ना स्टॉक मार्केट में, तो यू आर ऑल्सो मेंबर ऑफ द कंपनी। तुम देखना, तुमने कभी होल्ड किया रहेगा ना शेयर, और एजीएम वेजीएम का रहेगा ना, तो तुमको नोटिस आएगा कि एजीएम ये तारीख को है, वो तारीख को है, प्लीज डू अटेंड। अगर तुमने लॉन्ग टाइम के लिए शेयर्स होल्ड किए हैं तो, वरना नहीं आते, और यू नीड अ स्पेसिफिक अमाउंट फॉर दैट। ओके, तो यू इवन मेंबर्स कैन कॉन्ट्रैक्ट विद द कंपनी, क्योंकि मेंबर और कंपनी दोनों अलग अलग है। तो मेंबर भी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है कुछ बेचने का भी। सपोज मेरी कोई कंपनी है, चलो सलमान भाई की कंपनी ले लेते हैं। सलमान भाई की कंपनी क्या बेचती है? गाड़ी बेचती है। ओके, गाड़ी बेचती है। अभी आई नीड कार्स, आई हैव अ शोरूम। ओके, आई हैव अ शोरूम, आई नीड सम कार्स। मैं बोला सलमान भाई, बोलता है मेरे से नहीं, कंपनी से जाके बात करो। अल्लाह, कंपनी कंपनी में कौन रहेगा? उसको चलाने वाले रहेंगे, मेंबर्स रहेंगे। बोलेगा भाई मेरे को गाड़ी चाहिए, मेरे को महीने की 50 गाड़ी चाहिए। ओके, मेरे को महीने की 50 गाड़ी चाहिए, और मैं तुमको एक्स अमाउंट दे देगा। ओके, भाई वो कंपनी वाले मैं बोलेंगे सर ठीक है, आ जाओ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं। तो मैं उसका मेंबर हूं ना, तो भी मैं उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकता हूँ। मेरे पास रहेंगे कुछ शेयर, बट मेरे को गाड़ी तो चाहिए ना। मेरा भी तो धंधा है, मैं सिर्फ कंपनी के भरोसे नहीं बैठ सकता ना। तो मेरे को भी तो पैसा चाहिए रहेगा ना, तो मैं उसके साथ भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, मतलब मैं मेंबर होके भी कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी, एक अलग इंसान है, अलग इंसान। son. Okay, they acquire rights against it और incur liability to it। मैं कंपनी की कोई प्रॉपर्टी में राइट भी ले सकता हूँ। कभी जब मैंने कंपनी को लोन दिया रहेगा, या मैंने उसको कुछ पैसा दिया रहेगा, तो मैं उसके अंदर उसकी प्रॉपर्टी में राइट भी अक्वायर कर सकता हूँ, बट ओनली ऑन सर्टन टर्म्स एंड कंडीशंस। ओके, उसके लिए नीचे केस स्टडी भी है। फिर फॉर द डेट्स ऑफ द कंपनी ओनली क्रेडिटर्स कैन sue इट एंड नॉट इट्स मेंबर्स। अभी मेरी कंपनी है, ये एबीसी कंपनी है, मैं बेचता हूँ, सपोज मैं कुछ स्टील बेचता हूँ। ओके, अभी मैं स्टील बेचता हूँ, तो और मैंने किसी से रॉ मटेरियल खरीदा, सपोज मैंने XYZ से रॉ मटेरियल खरीदा, तो मेरा उसको पैसा देने का बाकी है। ठीक है, मेरा उसको 40 लाख रुपए देने का बाकी, 40 लाख रुपए देने का बाकी। तो वो मेरा क्या हो गया? XYZ के लिए मैं क्या हो गया? एक डेटर हो गया, और वो मेरे लिए क्या हो गया? क्रेडिटर हो गया। ओके, अभी मैं 6 महीना हो गया, मैं पैसा ही नहीं दे रहा हूँ, मैं पैसा ही नहीं दे रहा। XYZ क्या बोलेगा? सर पैसा दो, पैसा दो, पैसा दो, पैसा दो। मैं बोला नहीं है, नहीं है। तो ये क्या किया इसने? जाके कर दिया केस। ठीक है, इसने जाके कर दिया केस की कोर्ट में कि सर मेरा 40 लाख रुपए नहीं दे रहे। तो ये XYZ मेरा मेंबर थोड़ी है, इसने मेरे शेयर्स थोड़ी लिए। तो वो मेरे पे केस कर सकता है, क्योंकि मेरा उसका पैसा देने का बाकी है और हम लोग के बीच में बिजनेस रिलेशन है। बट मेंबर जो है, मेंबर अपने पैसे के लिए सू नहीं कर सकता। ओके, I'll write it here. The member cannot sue, sue मतलब केस करना, sue कंपनी for the amount which he has given to it। ओके, समझे? मेंबर्स कैन नॉट sue द कंपनी फॉर द अमाउंट विच ही हैज गिवन टू इट। मतलब मैंने शेयर्स के लिए जो पैसा दिया, मैं वो वापस मांग नहीं सकता, उसके लिए केस नहीं करता ये भाई तू मेरा पैसा नहीं दे रहे। मैंने मेरी मर्जी से पैसा लगाया है, तो वो मेरे को नहीं मिलेगा। हाँ, क्रेडिटर्स के साथ मेरा क्या था? क्रेडिटर XYZ के साथ मेरा क्या था? बिजनेस रिलेशन था। मैंने कुछ गुड्स लिए खरीदे थे, मेरा उसको पैसा देने का बाकी था, वो लीगल क्लेम है, इसके लिए वो मेरे को स्यू कर सकता है, वो थर्ड पार्टी है। ऐसा समझे? A company is capable of owing, enjoying and disposing a property in its own। मतलब सर, चलो अपन देखते हैं, कंपनी ने लोन लिया, उस वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, तो प्रॉपर्टी भी खरीद सकती है। हाँ, तो ये प्रॉपर्टी भी खरीद सकती है। ठीक है, अभी तुम देखते हो ये जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगे हैं, ये देखो इसमें किधर गया ये राज, ये बिल्डिंग जो उसने बनाया रहेगा, वो किसी ना किसी लैंड पे बनाया रहेगा ना। तो वो लैंड भी तो उसने खरीदा रहेगा ना, तो वो कंपनी के नाम पे लैंड रहता है। तो वो लैंड खरीद भी सकती है, उसको वापर भी सकती है, और उसको बेच भी सकती है, और कोई उसको रोकने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि वो लॉ के नजर में एक अलग इंसान है, सेपरेट लीगल एंटिटी। मैं तुमको वही बता रहा हूँ कब से, कि ये कंपनी जो है ना, वो सब कुछ कर सकती है। कंपनी मतलब कुछ रिस्ट्रिक्शंस है, बट कंपनी कैन डू एवरीथिंग। बिकॉज व्हाई?
बिकॉज इट इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। लॉ के आईज में इट इज अ वेरी डिफरेंट एंटिटी। ओके, ऑल्दो द कैपिटल जो मैंने ऊपर बोला था, देखो ये आएगा, ऑल्दो द कैपिटल एंड एसेट्स आर कंट्रीब्यूटेड बाय द शेयर होल्डर्स, द कंपनी बिकम्स द ओनर ऑफ द कैपिटल एंड इट्स एसेट्स। शेयर होल्डर्स आर नॉट प्राइवेट और जॉइंट ओनर्स ऑफ द प्रॉपर्टी। देखो इसके लिए केस स्टडी है। कैसे, मतलब इसका कहने का मतलब क्या है कि मैंने पैसा दिया ना, मैंने जो शेयर्स लिए, मैंने अभी सपोज रिलायंस के शेयर्स लिए, मैंने 10 लाख के शेयर ले लिए, तो वो कैपिटल किसका हो गया? वो कैपिटल रिलायंस का हो गया, वो मेरा पैसा नहीं है अभी। रिलायंस चाहे उसको जैसे भी यूज करे, वो मैं नहीं देख सकता। और ना ही मैं बोला मुकेश भाई अभी 10 लाख दिए आपको, चलो एक रिफाइनरी तो दो। मुकेश भाई बोले हट, तेरा इसमें ये 10 लाख जो दिया है ना, उसमें तेरा खुद नहीं, मैं कैसे भी वापरू, तेरे को चाहिए रहेगा ना पैसा तब बेच देना शेयर, पर तेरा कंपनी के प्रॉपर्टी में कोई हिस्सा नहीं है, समझा? कोई हिस्सा नहीं है तेरा, समझा ना? तो इसके लिए ज्यादा ये 10 लाख देख के उठ मत मेरे सामने, समझा ना वैसा? ओके, विल अंडरस्टैंड दिस बाय केस स्टडी। देखो ये केस स्टडी क्या है, द केस स्टडी का नाम क्या है? मकूरा वर्सेस नॉर्दर्न अश्योरेंस कंपनी लिमिटेड 1925। ओके, केस लॉ का नाम याद रखोगी तो वेल एंड गुड है, आंसर्स में मार्क्स मिलेंगे। नहीं याद रहा तो मत लिखना, गलत नाम मत लिखना। ओके, अ मेंबर, केस लॉ का फाइनल जजमेंट क्या था, ये देखो, ये फाइनल, अ मेंबर डज नॉट इवन हैव इंश्योरेबल इंटरेस्ट। समझ रहे हो? इंश्योरेबल इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है कि उसका इंश्योरेबल इंटरेस्ट मतलब होता है तुम तुम्हारा इंश्योरेबल इंटरेस्ट का मतलब होता है तुम्हारा इंटरेस्ट है, तुम्हारा हिस्सा है, अगर कोई फाइनेंशियल लॉस हुआ तो। ओके, कोई फाइनेंशियल लॉस हुआ, मतलब अगर कोई चीज है कंपनी में, अगर सपोज कोई इवेंट होने वाला है जिससे तुमको लॉस होगा, तुमको फाइनेंशियल लॉस होगा, तो वो चीज का तुम्हारे पास इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए। बट इंश्योरेबल इंटरेस्ट के लिए क्या जरूरी है? तुम्हारा उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए, तुम्हारा उसमें ओनरशिप होना चाहिए। विल अंडरस्टैंड दिस। देखो ये मैंने केस स्टडी बना के रखा है। देखो द बैकग्राउंड क्या है वो केस का, माकुरा भाई तो जो माकुरा भाई थे ना, वो सब शेयर ओन करते थे ना टिम्बर कंपनी। टिम्बर कंपनी मतलब लकड़ा होता है। वो अभी समझो ना, उसके पास 100 शेयर थे ना, वो कंपनी में 100 शेयर थे ना, तो 99 किसके पास थे? माकुरा भाई के पास। माकुरा वॉज ऑल्सो मेजर क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। वो जैसे मैंने बोला कि अपन कंपनी के साथ बिजनेस भी कर सकते हैं ना, उसके अपन क्रेडिटर भी हो सकते हैं, ठीक है? तो मैंने कंपनी से माकुरा भाई ने कंपनी से ट्रांजेक्शन किया रहेगा, उसका पैसा लेने का बाकी रहेगा, तो वो क्रेडिटर है, ठीक है? मीनिंग द कंपनी ओड हिम अ लॉट ऑफ मनी। हाँ ठीक है, चल। द सिचुएशन अभी क्या हुआ कि कंपनी के पास है ना टिम्बर बहुत सारा पड़ा था, तो माकुरा भाई ने क्या किया कि भाई इसका तो इंश्योरेंस नहीं है, अभी ये टिम्बर जो है वो जल गया ना तो मेरा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि कंपनी का सोल बिजनेस है टिम्बर बेचना या टिम्बर के गुड्स बनाना। अभी ये टिम्बर ही जल गया तो कंपनी धंधा क्या करेगी, और मेरा तो भाई बहुत सारा पैसा बाकी है। तो उसने क्या किया, उसका इंश्योरेंस ले लिया। किसके नाम पे? खुद के नाम पे। शाणे को देखो, किसके नाम पे ले लिया? खुद के नाम पे ले लिया। एंड that means he bought an insurance policy for the timber, but the policy was under his personal name and not the company's name। अभी तुम मेरे को बताओ, टिम्बर किसका? कंपनी का। तो इंश्योरेंस पॉलिसी किसकी होनी चाहिए? कंपनी की ना। तो इसने तो गलत ही किया ना, तो भी चलो अपन जाने देते, अपन जज नहीं है। ओके, तो भी इसने क्या किया, देखो मैं तुमको बताता हूँ। टिम्बर था, मेजर क्रेडिटर था, इसने इंश्योरेंस पॉलिसी टिम्बर के लिए अपने नाम पे ले लिया, जब और कंपनी के नाम पे नहीं लिया। तो प्रॉब्लम क्या हो गया, उसको जिस बात का डर था वही हुआ। भाई टिम्बर हो गया, जल गया, टिम्बर जल गया, अभी उसको क्लेम करना है इंश्योरेंस, ठीक है? तो अभी कोर्ट ने क्या बोला, द कोर्ट डिसाइडेड दैट द इंश्योरेंस कंपनी डिड नॉट हैव टू पे माकुरा। क्यों? ओनरशिप एंड इंश्योरेंस देखा। For an insurance claim to be valid, the person making the claim must have an insurable interest. Insurable interest मतलब they must have some legal right or ownership on the property they are assuring. Assuring मतलब insuring. ओके, लीगल राइट या ओनरशिप होना चाहिए। अभी उसने ऊपर क्या बोला कि कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी है, तो कंपनी के टिम्बर में उसका हाथ रहेगा क्या? नहीं ना। ओके, तो उसके लिए उसको लीगल राइट होना चाहिए
या उसका ओनरशिप होना चाहिए, और ना ही माकुरा भाई के पास ना ही लीगल राइट था, ना ही ओनरशिप थी। ओके, अभी शेयर होल्डर्स राइट, इवन दो माकुरा ओन्ड ऑलमोस्ट ऑल द शेयर्स ऑफ द कंपनी, डिड नॉट मीन ही पर्सनली ओन्ड द कंपनीज एसेट। जो मैंने वो अंबानी भाई वाला एग्जांपल दिया, तुमने कंपनी को पैसा दी, इसका मतलब ये नहीं कि उसके एसेट्स तुम्हारे हुए, कंपनी के एसेट्स कंपनी के हैं और तुम्हारा पैसा है, फिर कंपनी उसको जैसे भी वापरे। द कंपनी इटसेल्फ ओड द टिम्बर। और ये जो टिम्बर का जो ओनरशिप था ना, वो कंपनी के पास था, माकुरा के पास नहीं था, भले उसका जितना भी पैसा बाकी हो। ओके, तो सिंस द टिम्बर वाज ओन्ड बाय द कंपनी एंड माकुरा वाज नॉट पर्सनली ही हैड नो इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन इट। उसका कोई लीगल राइट या ओनरशिप था क्या? नहीं ना। देयरफॉर द इंश्योरेंस पॉलिसी इन हिज नेम फॉर द कंपनी टिम्बर वाज नॉट वैलिड। तो माकुरा could not claim the insurance money because he legally did not own any timber and the company did. As a shareholder, he had no direct right of ownership and thus had no right to insure them in his own name or claim compensation. मतलब तुम उसका समझे? मतलब तुम्हारा क्या होना जरूरी है? तुम्हारा देखो, सिंपल मैं इधर तुमको लिख के देता हूँ। डिस्टिंक्ट अपन फीचर उसका लिखते समरी लिखते हैं, उसका समरी लिखते। देखो, ये मेंबर, ये कंपनी, इसकी प्रॉपर्टी सिर्फ इसकी। हाँ, मेंबर ने कोई प्रॉपर्टी दी तो भी वो इसकी। मेंबर का पैसा कंपनी का, जब तक मेंबर वापस नहीं मांगता। और मेंबर कैन नॉट सी। ओके, ही डज नॉट ओन एनी प्रॉपर्टी। तो अपन देखो वापस एक बार देख लेते हैं, डिस्टिंक्टिव फीचर और मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर क्या है। ये सेपरेट लीगल एंटिटी है, मतलब अलग इंसान है। वाई? क्योंकि वो रजिस्टर्ड है और उसके पास एक लीगल पर्सनैलिटी है, लॉ ने उसको एक अलग दरिया दिया हुआ है। सेम राइट्स है, पावर है ऑफ सेम एज अ ह्यूमन बीइंग। इट्स डिस्टिंक्ट, अलग है। और ये भी सेपरेट है, मतलब एक अलग सब्सटेंस है उसका फ्रॉम इट्स मेंबर। मेंबर और कंपनी अलग अलग है। वो प्रॉपर्टी ओन कर सकती है, बैंक अकाउंट बना सकती है, लोन रेस कर सकती है, लायबिलिटीज इनकर कर सकती है। इट इज एट लॉ अ डिफरेंट पर्सन फ्रॉम द सब्सक्राइबर्स टू मेमोरेंडम। डिफरेंट पर्सन है, अलग अलग है, हम दोनों है अलग अलग, हम दोनों है जुदा जुदा, वैसा। इट्स पर्सनैलिटी इज डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट फ्रॉम द पर्सनैलिटी ऑफ दोज हु कंपोज इट, सलमान भाई और कंपनी। ओके, सलमान भाई अलग और उनकी बनाई हुई कंपनी अलग। इवन द मेंबर्स कैन कॉन्ट्रैक्ट विद द कंपनी। जैसे मैंने गाड़ी वाला एग्जांपल लिया, भले मैं कंपनी का मेंबर हूँ बट मेरे को गाड़ी चाहिए, तो आई कैन कॉन्टैक्ट द कंपनी बिकॉज इट्स अ बिजनेस रिलेशनशिप। बट ओनली इट्स क्रेडिटर्स कैन sue इट एंड नॉट इट्स मेंबर्स। वो टिम्बर वाला जो मैंने तो वुड वाला बताया। ओके, कि भाई जो थर्ड पार्टी है, ओनली थर्ड पार्टी कैन sue। तुम अगर तुम्हारे पास उसके शेयर है तो तुम उसको sue नहीं कर सकते। अ कंपनी इज केपेबल ऑफ enjoying, disposing and इन ओनिंग द प्रॉपर्टी, ओइंग डिस्पोइंग प्रॉपर्टी, ठीक है। कैपिटल एसेट्स, कैपिटल या एसेट जो भी शेयर होल्डर्स देते हैं वो कंपनी के बन जाते हैं और शेयर होल्डर्स का उसमें कोई हिस्सा नहीं है। और ये किससे पता चला अपन को? माकुरा वर्सेस नॉर्दर्न एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, उसमें उसका जजमेंट क्या था कि hence since the timbers were insured in the company's name, Makura could not claim the insurance compensation from the insurance company. Okay, perpetual succession, परपेचुअल सक्सेशन। सर परपेचुअल सक्सेशन, परपेचुअल मतलब चलते रहना। सी आई टेल यू उसका परपेचुअल का मतलब क्या होता है। परपेचुअल का मतलब होता है टू कीप गोइंग, एंड इन्फिनिटी मतलब इतना समझो ना, इन्फिनिटी तुमको आगे समझेगा। परपेचुअल मतलब इन्फिनिटी, कोई उसका कोई एंड नहीं है, परपेचुअल है, कीप्स ऑन गोइंग। मेंबर्स में डाई और मेंबर्स में चेंज। सर ऐसा कैसा लिख रहे? मेंबर्स में डाई और मेंबर्स में चेंज, हाँ, उसका मतलब ही तो है। तुमने अटल बिहारी जी का वो गाना स्पीच सुना है? सरकारें आएंगी सरकारें जाएंगी बट मेरा देश रहना चाहिए। वैसा ही है, मेंबर्स में कम, मेंबर्स में गो, मेंबर्स में डाई, मेंबर्स में चेंज, बट द कंपनी गोज ऑन टिल इट्स वाउंड अप। अभी सर ये क्या नया लफड़ा है, आपने तो अभी बोला। देखो, ये क्योंकि लॉ के अंदर बना है, जैसा अपन ने देखा है सेपरेट लीगल एंटिटी है, लॉ में बना है। तो परपेच लोग तो आते जाते रहेंगे, बट जिस दिन सरकार ने बोल दिया कि चलो भाई कंपनी बंद करो, या कंपनी ने कुछ हरकत किया,
जो एक्ट में लिखा था कि भाई अभी तेरे को ये तूने किया ना, ये चीज तूने गलत किया, अभी तेरे को कंपनी बंद करना पड़ेगा। सिंपल एग्जांपल, कंपनी ने किया फ्रॉड, फ्रॉड किया, ओके। अभी एक्ट में लिखा है कि फ्रॉड किया ना तो वाउंड अप, ओके। तो तुमको वाउंड अप करना पड़ेगा। हाँ, तुम लीगली बिजनेस चला रहे हो, अभी उसका ओनर मर भी गया, अभी रिलायंस का एग्जांपल ले लो, अभी रिलायंस में मुकेश भाई मर भी गए तो भी कंपनी तो चलेगा, अनंत या आकाश चलाएगा ही, ओके। धीरू भाई मर गए तो मुकेश चला रहा है, उसके बाद उसका आकाश चलेगा। जब तक कम लॉ नहीं बोलता है या गवर्नमेंट नहीं बोलती है बंद करो, तब तक कंपनी चलती रहेगी, उसका कुछ मतलब नहीं है। बट सर उसके शेयर्स का क्या होगा? वही तो आगे लिखा है ना, द शेयर्स ऑफ द कंपनी में चेंज हैंड इनफाइनाइटली, परपेचुअली, इनफाइनाइट। अभी मैं आज खरीद लूँ, मैं आज किसी कंपनी के शेयर्स खरीद लूँ, मैंने आज टाटा के शेयर्स खरीद लिए, बट अभी मैं कल जाके उसको बेच दूँ, तो ऐसे तो कितने जन खरीदते बेचते रहेंगे ना दिन में। तो वही तो बोल रहा है कि शेयर्स तो किसी भी हाथ में जा सकते हैं, बट इट विल नॉट अफेक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ द कंपनी, कंपनी को उससे फर्क नहीं पड़ेगा। जब तक उसके मार्केट में शेयर्स है ना, उसको उससे मतलब है, किसके हाथ में जा रहे हैं किसके हाथ में नहीं जा रहे, वो उसका मतलब नहीं है। सिंस इट इज आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, लॉ अलोन कैन ब्रिंग एंड्स टू हिज लाइफ, इट्स एक्जिस्टेंस इज नॉट अफेक्टेड बाय डेट और इंसॉल्वेंसी ऑफ मेंबर्स। क्योंकि क्योंकि कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी है, जैसे ऊपर बोला, कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी है, तो या तो लॉ उसको खत्म करेगा या तो गवर्नमेंट उसको खत्म करेगी। अगर मेंबर है, मेंबर डाय और इंसॉल्वेंट मतलब कंगाल हो गए, पार्टी उठ गई, इंसॉल्वेंट हो गए, तो उससे उसको फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इट इज लॉ, इट इज क्रिएटेड बाय लॉ एंड इट आर्टिफिशियल पर्सन, तो लॉ अलोन कैन ब्रिंग एंड टू इट्स लाइफ। ठीक है। अभी आज मुकेश भाई मर जाए या अनंत आकाश कंगाल भी हो जाए तो रिलायंस को फर्क पड़ेगा क्या? उसके शेयर्स के प्राइस को फर्क पड़ेगा, बट कंपनी को फर्क पड़ेगा क्या? नहीं, कंपनी तो चलती रहेगी ना, क्योंकि उसमें डायरेक्टर्स है, एमडी है, वो सब है, उन सबको तो फर्क नहीं पड़ेगा ना, उसका वर्किंग तो चलते रहेगा। देखो एग्जांपल देखो, many companies in India are existence over 100 years. This is only due to the fact that it has a perpetual existence. There was a company which has 7 members, all of them died in an aircraft. Despite this, the company still exists, unlike partnership. अभी पार्टनरशिप में क्या होता है ना, पार्टनर मर गए ना, अगर दो पार्टनर और एक भी मर गया ना, तो उसको पार्टनरशिप नहीं बोलते, फिर उसका वो डिजोल्व, पार्टनरशिप डिजोल्व हो जाती है। बट कंपनी में, क्योंकि वो एक अलग इंसान है, तो वो कंपनी तो रहेगी, भले उसके मेंबर मर जाए या उसके ओनर मर जाए, ओके। तो देखो अभी इसका क्रक्स क्या है, मेंबर्स में डाई, मेंबर्स में चेंज, बट कंपनी गोज ऑन अंटिल इट इज बाउंड अप बाय स्पेसिफाइड इन द ग्राउंड्स। The hands are shares change hand indefinitely but will not affect the existence of the company. Since it is an artificial person created by law, law alone can bring end to its life and it is not affected by death or insolvency of its members. समझे? सरकारें आएंगी सरकारें जाएंगी, मतलब मेंबर में कम मेंबर में गो, कंपनी गोज ऑन अनलेस लॉ टेल्स यू टू, ओके। एंड इट इज नॉट अफेक्टेड बाय डेथ और इंसॉल्वेंसी ऑफ द पार्टनर, ओके। एंड इट कैन ओनली बी वाउंड अप बाय कंपनी लॉ और एनी अदर लॉ और द सेंट्रल गवर्नमेंट। अभी लिमिटेड लायबिलिटी, अभी तुमको लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट पता है क्या? आई गेस तुम लोग ना अकाउंट्स में पढ़ा ही रहेगा। द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर डिपेंड अपॉन द काइंड ऑफ कंपनी विच ही इज अ मेंबर ऑफ। अभी बहुत सारे टाइप की कंपनी देखो, जो नीचे लिखा है, तो वी नो दैट अ कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी विच इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम हिज मेंबर्स। तो भी पर उसकी कुछ तो लाइब उस काइंड ऑफ कंपनी रहती है ना, तो देख आ जाओ अपन देखते हैं कौन सी टाइप्स की लायबिलिटी होती है, लिमिटेड, अनलिमिटेड। Thus, in case of limited liability company, the debts of the company in the totality do not become the debts of the shareholder. The liability of the member of the company is limited to the extent of the nominal value of shares held by them. In no case the shareholder can be asked to pay anything more than the unpaid value of shares. सर फटाफट क्या भूल गए? अभी नॉमिनल वैल्यू मतलब फेस वैल्यू, फेस वैल्यू तुमको पता है फेस वैल्यू कितना रहता है शेयर का? 1 रुपया, 2 रुपया, 10 रुपया, 5 रुपया, भले उसका मार्केट प्राइस कितना भी रहने दो, मार्केट प्राइस भले ना उसका 10,000 हो, उसका फेस वैल्यू 2 रुपया, 5 रुपया रहेगा, ओके। उसको बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं, रजिस्टर्ड कैपिटल या सब नॉमिनल कैपिटल, ओके। तो अनपेड वैल्यू जितना है, अभी अनपेड वैल्यू कितना है? अभी मैंने, तो तुम लोग अगर 12th में पढ़ा रहेगा तो कंपनी कंपनी में अपन पैसा कॉल करते हैं ना, कि भाई फाइनल कॉल, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल। अभी फाइनल कॉल का समझो पैसा 10 रुपए का तुम्हारा कॉल था, 8 रुपए आ गया, और तुम्हारा फाइनल कॉल 2 रुपए का बाकी है और 2 जन ने भरा नहीं है,
तो जो लायबिलिटी ऑफ द कंपनी है ना, अभी कंपनी को पैसा चुकाना है ना, कंपनी लायबिलिटी है, वो मेंबर की नहीं रहेगी भाई। हाँ, अभी कोई तीसरा इंसान, अभी सपोज आई गिव एन एग्जांपल, एक मिनट, जस्ट अ सेकंड, लेट मी। अभी सपोज ये ये क्या बोलते हैं अपन, चलो ले लेते, टाटा ले लेते। टाटा है, अभी ये मैं हूँ, समझो। अभी मैंने टाटा के साथ बिजनेस किया, ओके। मैंने उनको क्या दिया, मैंने उनको मैंने उनको दिया लैपटॉप्स दिए, मैंने उनको लैपटॉप दिया, ठीक है। और उन्होंने मेरे को क्या दिया, उन्होंने मेरे को, मेरा 10 लाख का अग्रीमेंट था, उन्होंने मेरे को 5 लाख ही दिया, ठीक है। 5 लाख ही दिया, अभी मेरा 5 लाख लेने का बाकी है। मैं बोले जा रहा हूँ, बोले जा रहा हूँ, बोले जा रहा हूँ, वो लोग पैसा ही नहीं दे। तो अभी वो मेरे लिए तो एसेट हो गया, बट कंपनी के लिए तो लायबिलिटी है ना, कि भाई अरे इसको पैसा देना है, इसको 5 लाख देने का है। तो अभी मैं क्या हुआ, अभी इसका है ना, एक इसका मेंबर था, अभी इसका एक मेंबर था राजू। अभी राजू को क्या, मैं बचपन से जानता हूँ। तो मैं गया राजू के पास, राजू 5 लाख दे, मेरा मेरा 5 लाख दे, मेरे को नहीं मालूम, मैंने टाटा को लैपटॉप दिया, उन लोग ने मेरा 5 लाख रोक के रखा है, मेरा 5 लाख दे, मेरे को नहीं मालूम, ठीक है। राजू क्या बोलेगा, ए भाई शांति रख, मैं ना, टाटा है ना लिमिटेड लायबिलिटी है, ठीक है। तो मेरा लायबिलिटी उतना ही है जितना मेरा अनपेड वैल्यू का शेयर है, या मेरा नॉमिनल वैल्यू है शेयर का, ठीक है। मैं तेरे को 5 लाख 5 लाख नहीं देगा, तेरे को जाने का है ना, तो कंपनी में जाके मांग, इधर नहीं आने का, ठीक है। और उसने मेरे को भगा दिया, मतलब तुम समझे। मेंबर अभी कोई क्रेडिटर है या कोई लायबिलिटी है, तो तुम जा रहे हो उसके शेयर होल्डर के पास जाके नहीं मांग सकते, भाई मेरा पैसा दे, उसके लिए तुमको कंपनी को ही बोलना पड़ेगा। और कंपनी भी शेयर होल्डर को कितना लायबल कर सकती है, उसके अनपेड वैल्यू तक ही। मतलब ये जो 2 रुपया जो बचा ना, ये जो 2 रुपया बाकी रहा ना, वो उतना अगर मेरा देने का बाकी है ना, तो कंपनी मेरे को वो सिर्फ देने के लिए ही फोर्स कर सकती है, बाकी इट कैन नॉट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम मी मोर देन 10 रुपीज। अभी सपोज 10 रुपए का नॉमिनल वैल्यू है उसका, और मैंने 10,000 शेयर्स खरीदे हैं, तो मेरा 1 लाख का अमाउंट है, और मैंने 20,000 नहीं दिया, तो वो मेरे से ये 20,000 ही मंगा सकती है। शी कैन नॉट, द कंपनी कैन नॉट आस्क मी टू गिव वन मोर 1 लाख। मेरा लायबिलिटी 1 लाख का था, मेरा 20,000 बाकी है, तो मेरा एग्जिस्टिंग लायबिलिटी 20 लाख का है, तो मैं 20 लाख ही दूंगा उसको, ओके। इतना समझे। तुम्हारा नॉमिनल वैल्यू या जो अनपेड शेयर वैल्यू है, उतना ही तुम लायबल रहोगे लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी में, उससे आगे तुम्हारे पास कंपनी कुछ मांग नहीं सकती। और ये देखो, अनपेड वैल्यू मतलब जितना बाकी है कॉल करने का, या कॉल्ड बट नॉट रिसीव्ड, ओके। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। अभी लिमिटेड लायबिलिटी तो तुमको समझ गया ना। अभी इन द केस ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, ऐसा भी हो सकता है, कितनी सारी कंपनीज है जिसके शेयर मार्केट पे प्राइस लिस्टेड नहीं है, जो शेयर मार्केट पे लिस्टेड नहीं है, उसके शेयर्स नहीं है, वो सिर्फ गारंटी से है। गारंटी मतलब जब कंपनी डिसॉल्व होती है ना, तो तुम्हें डिसॉल्यूशन के टाइम पे, डिसॉल्यूशन के टाइम पे मेंबर्स को बोलेंगे, जाओ पैसा लेके आओ अभी। मतलब लिमिटेड बाय गारंटी, हाँ तुमने कंपनी स्टार्ट किया, तुम लोग ने 4 जन के मिलके कंपनी स्टार्ट किया, अरे भाई अभी तो पैसा नहीं है, ठीक है, अभी अपन पैसा नहीं लाते, अपन लोन ले लेते हैं, अपन शेयर्स नहीं लेंगे, अपन इसको लिमिटेड बाय गारंटी रखते हैं अभी के लिए, ठीक है। ये सब कंपनीज तुम खाली नाम याद रखो, नीचे नीचे धीरे धीरे आएंगी, डोंट गो इनटू द डेप्थ नाउ। मैं तुमको फीचर्स दिखा रहा हूँ, फीचर्स देख लो। लिमिटेड बाय गारंटी तो तुम बोलेगे हाँ, जब भी कंपनी वाइंड अप करेगी ना, जब अपन कंपनी वाइंड अप करेंगे या बंद करेंगे ना, बंद करने के टाइम पे लायबिलिटी सेटल करने के लिए, बंद करने के टाइम पे लायबिलिटी सेटल करने के लिए जब पैसा लगेगा ना, तभी तुम लोग पैसा दोगे ना मेरे को। तो सब बोले हाँ हाँ, हम लोग गारंटी देते हैं कि जब कंपनी बंद करेगी ना, तभी हम लोग पैसा लेके आएंगे। तो क्या होएगा, द मेंबर्स आर ओनली लायबल टू द एक्सटेंट ऑफ अमाउंट गारंटीड बाय देम, दैट ओनली व्हेन द कंपनी गोज इनटू लिक्विडेशन। मतलब जब कंपनी लिक्विडेशन में जाएगा, तब भी तुम पैसा मंगा सकते हो, उसके पहले तुम पैसा नहीं मंगा सकते, और वो भी कितना पैसा मंगा सकते हो, जो पहले से फिक्स्ड अमाउंट रहेगा। यू कैन नॉट
वो पहले से एक फिक्स्ड अमाउंट रहता है, मेमोरेंडम में या अग्रीमेंट बना के लिख देते हैं कि हाँ भाई, वाउंड के टाइम पे मैं 10 लाख लेके आऊंगा, उससे ज्यादा नहीं। हाँ, तो जब भी लिक्विडेशन में जाएगा या वाउंड अप होएगा ना कंपनी, तभी तुम 10 लाख मंगा सकते हो। 10 लाख से 1 रुपया ज्यादा तुम मंगा नहीं सकते। हाँ, मेंबर उसकी मर्जी से दे रहा है तो बात अलग है, बट तुम उसको फोर्स नहीं कर सकते कि भाई इतना पैसा लेके आ, ठीक है। अभी बात आई इसकी, अनलिमिटेड की। सर हो गया, लिमिटेड बाय लिमिटेड लायबिलिटी शेयर्स के केस में हो गया, गारंटी में हो गया। अनलिमिटेड, अनलिमिटेड मतलब अनलिमिटेड, जितना है उतना मेंबर का लायबिलिटी, जो जो आया वो। बट सर्टन केसेस होते हैं, मतलब लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स इज अनलिमिटेड। कंपनी जितना चाहे ना उतना पैसा मंगा सकती है। आज कंपनी ने बोला 10 लाख लेके आओ, ठीक है लेके आना पड़ेगा। कल कंपनी ने बोला 50 लाख लेके आओ, लेके आना पड़ेगा। कल कंपनी ने बोला भाई 20 हजार लेके आ, तो 20 हजार भी लेके आना पड़ेगा। कंपनी का अनलिमिटेड लायबिलिटी है तो मेंबर का भी अनलिमिटेड लायबिलिटी है, समझे वैसा। अभी लास्ट फीचर, नहीं लास्ट नहीं, सेकंड लास्ट फीचर, सॉरी, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। अभी तुमको ना इसमें और सेपरेट लीगल एंटिटी में देखना पॉइंट बहुत कम मिलेगा। कंपनी इज अ आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय अ प्रोसेस अदर देन नेचुरल बर्थ। नेचुरल बर्थ, ह्यूमन बींग्स कैसे पैदा होते हैं? नेचुरल बर्थ से। इट इज अ नेचुरल प्रोसेस, इट इज क्रिएटेड बाय मदर नेचर। बट ये कैसे पैदा हुई है? इट इज लीगल और जुडिशियल एंड क्रिएटेड बाय लॉ। अभी ये पैदा हुए लॉ के अंदर, इसको तो मदर नेचर ने प्रोड्यूस नहीं किया ना, इसको तो लॉ ने प्रोड्यूस किया। देयरफॉर इट इज अ आर्टिफिशियल पर्सन, ओके। एंड सिंस इट इज अ पर्सन, सिंस इट इज क्लोथेड विद ऑल राइट्स ऑफ एन इंडिविजुअल। ये पर्सन क्यों है? क्योंकि लॉ ने इसको सब राइट्स दिए हैं। लॉ लॉ ने बनाया तो लॉ ने क्या बोला कि भाई तेरे पास सब राइट्स है ऑफ इंडिविजुअल। मैंने ऊपर जो बोला उसके, जैसे ऊपर बोला इट हैज ऑल राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, ओके। तो फिर फर्दर, अ कंपनी बीइंग अ सेपरेट लीगल एंटिटी। सर ये सेपरेट लीगल एंटिटी बहुत बार आ रहा है, आएगा बेटा, वही तो इसका कारण है ना। ये कंपनी लॉ बनाने का रीजन ही है, एक अलग इंसान है इसके लिए, तो इसके लिए इतना लॉ बना रहे हैं। और कितनी सारी कंपनीज बनेगी। तो देखो ये सब ऊपर जैसा सेम है, बैंक का अकाउंट बना सकती है, लोन रेज कर सकती है, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकती है, मेंबर कैन कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, सू कर सकते हैं, इट कैन डू एवरीथिंग। हाँ देखो इधर लिमिटेशन आया ना, इट कैन डू एवरीथिंग विच अ नेचुरल पर्सन कैन डू, बट एक्सेप्ट what not, it cannot be sent to jail, take a oath or practice a learned profession. Hence it is a legal person in its own sense, समझे। तुम सब कर सकते हो, तुम सब कर सकते हो, बट खाली क्या नहीं कर सकते? तुम एक पर्सन हो, तुम जेल नहीं जा सकते, ओथ नहीं ले सकते, शादी नहीं कर सकते और प्रैक्टिस नहीं कर सकते। सर प्रैक्टिस, अभी तुम सीए कर रहे हो, तो सीए बनने के बाद अगर तुम प्रैक्टिस करोगे तो वो एक प्रोफेशन ही है ना, तो वो एक प्रोफेशन है। तो अभी कोई कंपनी उठ के थोड़ी सीए बन सकती है। हाँ, कंपनी में काम करने वाले सीए होंगे, बट कंपनी थोड़ी सीए बन सकती है। ये कंपनी थोड़ी सीए बन सकती है, कंपनी के मेंबर है वो सीए हो सकते हैं, उसका डायरेक्टर सीए हो सकता है, बट कंपनी सीए नहीं हो सकती ना। तो और कंपनी को कैसे जेल डालोगे? उतनी बड़ी बिल्डिंग को जेल में डाल दोगे, उसके मेंबर्स को डालोगे, उसके डायरेक्टर्स को डालोगे। शपथ ले गया, मैं ईश्वर को ध्यान में रखते शपथ लेता हूँ, कंपनी वैसा थोड़ी बोलेगी, उसके मेंबर बोलेंगे, डायरेक्टर बोलेंगे वैसा। तो इट कैन डू एवरीथिंग विच अ नेचुरल पर्सन कैन डू, एक्सेप्ट go to jail, take a oath, marry or practice. Hence it is a legal person in its own sense. As it is, जैसे अभी देखो एजेंसी का बात आएगा, एज अ कंपनी इज अ आर्टिफिशियल पर्सन एंड इट कैन ओनली एक्ट थ्रू सम ह्यूमन एजेंसी, दैट इज डायरेक्टर्स। तो डायरेक्टर्स क्या होता है ना बेटा, वो लोग है ना डे टू डे अफेयर संभालते हैं। वो है ना कंपनी के डायरेक्टर्स होते हैं ना, वो कंपनी के मीटिंग में इलेक्ट होते हैं, वो है ना डे टू डे अफेयर संभालते हैं। अभी रिलायंस में डायरेक्टर कौन है? मुकेश भाई है, उनका बेटा है, उनकी बहू है, सब है, ठीक है। वो सब डायरेक्टर्स है, दे आर दी ओनर्स बट दे आर डायरेक्टर्स। तो वो कंपनी के डे टू डे अफेयर संभालते हैं। अभी तुम मैंने शेयर शेयर मार्केट से शेयर खरीद के रखे तो अपन थोड़ी जाएंगे, ए भाई नीचे उतर, आज बिल्डिंग में साफ करेगा, ऐसा थोड़ी डे टू डे। या तुम बोलोगे कि नहीं नहीं, या तो फिर क्या बोलते हैं, बिल्डिंग में कौन सा कलर करवाना है मैं डिसाइड करूंगा, ऐसा। अभी तुम एक जन बोल रहे हो, अभी सोचो ऐसा 10,000 जन बोलेंगे तो कितना कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा। इसके लिए कंपनी अपॉइंट्स अ डायरेक्टर or managers which can control the affairs of the company and act as its agency, but they are not the agents of the members. अभी देखो, डे टू डे अफेयर्स मतलब कंपनी के बिजनेस में ध्यान नहीं दे सकते, किसी से कॉन्ट्रैक्ट करना है, किसी से बातचीत करनी है, मीटिंग्स रेस करनी है, शेयर होल्डर्स का ध्यान रखना है, तो वो सब करेगा। अभी ये लोग उतर के बेचने नहीं जाएंगे। अभी
कुछ प्रोडक्ट बेचना है तो डायरेक्टर सड़क पे उतर के प्रोडक्ट बेचने नहीं जाएंगे, वो कंपनी का काम है, कंपनी करेगी अलग से, उसका मैनेजमेंट करेगा। और वो उसकी खाली एजेंसी है कि हाँ वी रिप्रेजेंट द कंपनी, हाँ कंपनी का बात हो रहा है ना तो उसको रिप्रेजेंट हम कर रहे हैं। जैसे कि पॉलिटिशियंस है जो जनता के रिप्रेजेंटेटिव, वैसे डायरेक्टर्स है वो कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव है। वो अपने अपना काम नहीं करेंगे, अपने लिए काम करेंगे। वो बात अलग है, वो लोग काम नहीं करते बट वो अपने लिए काम करते हैं ना, वैसे डायरेक्टर्स कंपनी के लिए काम करते हैं, कंपनी का काम नहीं करते, ठीक है। दे आर नॉट द एजेंट्स ऑफ द मेंबर्स। मतलब अभी तुम मेंबर हो, तुम कंपनी में गए, कुछ तुमको चाहिए था, तुम डायरेक्टर नहीं बोल सकते "ए, जा भाई चाय लेके आ", भाई वो तुम्हारा एजेंट नहीं है, ठीक है। डायरेक्टर है, इज्जत से बात करो। वो तुम्हारा एजेंट नहीं है, वो तुम्हारा एजेंट नहीं है। वो किसका एजेंट है? वो कंपनी का एजेंट है, ठीक है। वो तुम्हारा एजेंट नहीं है, वो कंपनी का एजेंट है। आइदर डायरेक्टर कैन आइदर ऑन इट्स ओन थ्रू कॉमन सील ऑथेंटिकेट इट्स फॉर्मल एक्ट्स। अभी कॉमन सील नीचे आएगा, मतलब थप्पा। दस कंपनी इज कॉल्ड अ लीगल आर्टिफिशियल पर्सन। भले ही वो पर्सन है बट वो आर्टिफिशियल है, क्यों? क्योंकि वो अदर देन नेचुरल प्रोसेस से बॉर्न हुआ है, लॉ से क्रिएट हुआ है, फिर सेपरेट लीगल एंटिटी है। जेल नहीं जा सकता, ओथ नहीं ले सकता, शादी नहीं कर सकता, प्रोफेशन लर्न नहीं कर सकता। डायरेक्टर्स के थ्रू उसको काम कराना पड़ता है। और डायरेक्टर्स भी सिर्फ कॉमन सील के थ्रू एक्ट कर सकते हैं, वो भी ऑथेंटिकेटेड फॉर्मल एक्ट। ये मैं तुमको नीचे समझाता हूँ, इस जस्ट इसके नीचे ही है ये। तो देयरफॉर इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन बट इट्स ओन सेंस। अभी तुम्हारा कोई इंसान रहता तो वो सब काम खुद ही करता ना, बट कंपनी ये सब काम थोड़ी कर सकती है, ठीक है वैसा। अभी कॉमन सील, लेट स्टार्ट विद द कॉमन सील। कॉमन सील, अभी सर कॉमन सील क्या होता है? कॉमन सील बोले तो थप्पा। तुम अभी जाते हो ना, कोई गवर्नमेंट ऑफिस में गए या किधर गए, तो वो लोग भाई तुम लोग ने उसको डॉक्यूमेंट दिया, तुमने उसको डॉक्यूमेंट दिया, वो ऐसा थप्पा मारेगा, उस पर रेड रेड कलर का रहता है, सब मालूम है। वो उस पर थप्पा मारता है, वो क्या है? कॉमन सील है, गवर्नमेंट का कॉमन सील है कि हाँ नाउ दिस डॉक्यूमेंट इज ऑथेंटिकेटेड बाय गवर्नमेंट। हाँ गवर्नमेंट इसको अभी लीगल मानता है। वैसा अभी तुम नोटरी कराने जाओगे प्रॉपर्टी के केस में, तो नोटरी का मतलब क्या होता है? वो कॉमन सील टाइप ही रहता है, कॉमन सील नहीं रहता है, वो कॉमन सील टाइप रहता है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, दोनों को सेम मत समझना। नोटरी इज अ डिफरेंट थिंग, बट वो थप्पा मारता है तो वो एक वैसा ही थप्पा कंपनी में भी लगता है, कंपनी कॉमन सील बना सकती है खुद का। अ कंपनी बीइंग एन आर्टिफिशियल पर्सन इज नॉट बिस्टोव्ड विद द बॉडी। सर अभी ये लोग कैसा बात कर रहे हैं? एक सेंटेंस में लिख रहे आर्टिफिशियल पर्सन है और फिर बोलते हैं नॉट बिस्टो विद अ बॉडी। बिस्टो मतलब उसके पास बॉडी नहीं है। सर ये लोग क्यों ऐसा लिखते हैं? अभी छोड़ो, जाने दो। मतलब आर्टिफिशियल पर्सन है तो उसके पास बॉडी नहीं रहेगा ना, लॉ के थ्रू बना हुआ है। देयरफॉर इट वर्क्स थ्रू एजेंसी ऑफ ह्यूमन मीन्स डायरेक्टर। जैसे ऊपर बोला कि डायरेक्टर उसके एजेंट है और मेंबर के नहीं है। देयरफॉर द कॉमन सील इज अ कंपनीज ऑफिशियल सिग्नेचर of which is affixed by the officers and the employees of the company on its every document। मतलब भी कॉमन सील जो है ना, वो थप्पा रहता है या तो साइन रहता है जो स्टैंप पे तुम लगाते हो। और एम्प्लॉय या जो ऑफिसर रहते हैं, ऑफिसर मतलब डायरेक्टर मैनेजर, वो सब ऑफिसर लेवल के आदमी हो गए, तो वो सब एक डॉक्यूमेंट पे जब जब वो डॉक्यूमेंट पे मारते हैं ना, तब वो डॉक्यूमेंट वैलिड कहलाता है। बट कॉमन सील इज यूज्ड बाय अ कॉर्पोरेशन एज द सिंबल ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन। हाँ मतलब तुमने कॉमन सील मार दिया ना, अभी डॉक्यूमेंट है उस पर कॉमन सील मार दिया, हाँ भाई ये कंपनी के द्वारा ऑथेंटिकेटेड है और ये कंपनी, इट इज अ सिंबल ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन। हाँ ये दिस कंपनी एग्जिस्ट। ये फालतू फालतू कंपनी नहीं है, ये कंपनी सच्ची में एग्जिस्ट करती है और ये इसका प्रूफ है कि इसका थप्पा मारा हुआ है, वैसा। बट अभी इसमें आया ट्विस्ट। द कंपनीज एक्ट अमेंडमेंट एक्ट 2015, इसको याद मत रखना, इसको जाने दो। याद रख सकते हो तो रखो, वरना उतना कॉमन नहीं। मेड द कॉमन सील ऑप्शनल। मतलब पहले 2015 के पहले कंपलसरी था, बट अभी 2015 के बाद इसको क्या कर दिया? ऑप्शनल। कैसे? बाय ओमिटिंग द वर्ड्स एंड अ कॉमन सील। कोई सेक्शन रहेगा फ्रॉम द सेक्शन 9 सो एज टू प्रोवाइड एन अल्टरनेटिव मोड ऑफ ऑथराइजेशन ऑफ कंपनीज हु हैव नॉट ऑप्ट कॉमन सील। पहले कहता था कि तुम वो लॉ में कैसा लिखा था कि हाँ द कंपनी शुड हैव डैश 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 एंड अ कॉमन सील। सेक्शन 9 में ऐसा लिखा था कि भाई कंपनी के पास कॉमन सील होना ही चाहिए। बट ये लोग ने क्या किया, ये वर्ड्स को वो एक्ट से हटा दिया, सेक्शन 9 से हटा दिया।
तो अभी ऑप्शनल नहीं है, मतलब ये लॉ को इंटरप्रेट करने का तरीका है, यू डोंट गेट डीप इनटू दिस। तो कॉमन सील हटा दिया बाय वर्ड्स ओमिट करके, तो अभी चलेगा, कॉमन सील नहीं रहेगा तो। ठीक है। तो रैशनल फॉर दिस अमेंडमेंट सीन एज अ रेलिक ऑफ मेडिवल टाइम्स, मतलब जो कॉमन सील था ना वो बहुत पुराना था, तो उसको ये लोग क्या बोले कि भाई जमाना बदल रहा है, अपन भी जमाने के साथ बदलते हैं। तो उन लोग ने क्या किया, वो एक पुराने जमाने का चिन्ह था, प्रतीक था। तो बोलते अभी बंद करो भाई, पुराना जमाना भिड़े नहीं है अपन, निकालो ये कॉमन सील वॉमन सील, अभी नया चीजें लाओ। इवन इन द यूके द कॉमन सील हैज बीन मेड ऑप्शनल टिल 2006। इट द अमेंडमेंट प्रोवाइड्स दैट द डॉक्यूमेंट विच नीड टू बी ऑथेंटिकेटेड बाय कॉमन सील रिक्वायर्ड टू बी डन सो ओनली इफ द कंपनी ऑप्ट्स टू हैव अ कॉमन सील। अभी इसमें क्या हुआ कि प्रोविजन लिखा है कि भाई अभी एनुअल रिपोर्ट है ना, उस उस पे कॉमन सील होना चाहिए, कंपलसरी है। बट ये अमेंडमेंट ने क्या किया कि अगर तुमने कॉमन सील ऑप्ट किया है ना, अगर तुम्हारे पास कॉमन सील है ना, तो ही तुम कॉमन सील लगाओगे एनुअल रिपोर्ट पे। अगर तुम्हारे पास कॉमन सील नहीं है ना, तो तुमको जरूरत नहीं है कॉमन सील का। और अगर तुम्हारे पास कॉमन सील नहीं है ना, तो तुम क्या करोगे, कॉमन सील पहले, एक मिनट, कॉमन सील था पहले, कंपलसरी था, ठीक है। फिर अमेंड हुआ तो ऑप्शनल हो गया। अभी उसमें दो केस हो गए, कंपनी हैव कॉमन सील, मैं COS लिख रहा हूँ, डू नॉट हैव, ठीक है, डू नॉट हैव COS, ओके। तो अभी इसने वो अमेंडमेंट ने क्या बोला कि अगर तुम्हारे पास कॉमन सील है ना, तो तो जो डॉक्यूमेंट्स पे रिक्वायर इट, उस पे लगेगा, सिंपल बात, ओके। और तुम्हारे पास कॉमन सील नहीं है ना, तो तुम सीधा एक काम करो, क्या करो, दो डायरेक्टर का साइन ले लो, जस्ट सेकंड, दो डायरेक्टर का साइन ले लो। और अगर तुम्हारे पास कंपनी सेक्रेटरी है और वन डायरेक्टर, और वन डायरेक्टर, वन कंपनी सेक्रेटरी, इफ यू हैव, समझे। पहले कॉमन सील कंपलसरी था, फिर अमेंडमेंट आया, उसने एंड कॉमन सील हटा दिया तो ऑप्शनल हो गया। अभी जिस कंपनी के पास कॉमन सील है, तो जो डॉक्यूमेंट पे कॉमन सील रिक्वायर है उस पे लगेगा। जिस कंपनी के पास कॉमन सील नहीं है या उन्होंने नहीं लिया है, तो उस पर दो डायरेक्टर लोग साइन करेंगे, या तो फिर एक डायरेक्टर, या तो और एक कंपनी सेक्रेटरी साइन करेगा, अगर कंपनी सेक्रेटरी है तुम्हारे पास तो, ओके। ये उसका शॉर्ट है, इतना याद रखोगे ना तो भी चलेगा, इतना सब लिखने का जरूरत नहीं है। देखो, ठीक है, फीचर्स हो गए। लेट्स एक बार रिवाइज कर लेते हैं, चलो फीचर्स रिवाइज कर लेते हैं अपन। कंपनी मतलब अकॉर्डिंग टू सेक्शन 220, कंपनी कंपनीज एक्ट डिफाइंस द टर्म कंपनी एज कंपनी मीन द कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी अंडर प्रीवियस कंपनी लॉ, ठीक है। अभी सेपरेट लीगल एंटिटी है, तो उसका मतलब क्या है, वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, क्लोथेड विद लीगल पर्सनैलिटी है, रजिस्टर्ड होनी चाहिए, सेम राइट्स एंड पावर्स है, एक जस्ट सेम राइट्स एंड पावर्स है उसके पास, एज अ ह्यूमन बीइंग वो डिस्टिंक्ट है, सेपरेट है फ्रॉम इट्स मेंबर्स, प्रॉपर्टी ओन कर सकती है, बैंक अकाउंट बना सकती है, लोन रेज कर सकती है, एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स। इट इज अ डिफरेंट पर्सन फ्रॉम द सब्सक्राइबर्स टू मेमोरेंडम। द उसकी और कंपनी की पर्सनैलिटी अलग अलग है, सलमान भाई और उसकी उनकी कंपनी। फिर ठीक है, फिर वो मेंबर्स के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, बट खाली उसको क्रेडिटर स्यू कर सकते हैं, मेंबर्स नहीं स्यू कर सकते उसके डेट्स के लिए। फिर वो खुद प्रॉपर्टी ले सकती है, खरीद सकती है, बेच सकती है। और अगर तुम कैपिटल एसेट शेयर होल्डर्स दे रहे तो भी वो कंपनी की प्रॉपर्टी हो जाएगी, और शेयर होल्डर्स का कोई उसमें हिस्सा नहीं है। और हाउ डू वी कम टू द कंक्लूजन टू दैट, बाय माकुरा वर्सेस नॉर्दर्न अश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। ये केस का क्या था, जजमेंट कि कंपनी अ मेंबर डज नॉट इवन हैव अ इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द कंपनी, ठीक है।
और उसमें क्या था, देखो अपन वापस केस लॉ तुम ध्यान रखना, Makora cannot claim the insurance money because he literally did not own the timber and the company did, and no shareholder had direct ownership in the company's asset. Thus, he has no right to insure them in his own name and claim the insurance for them. Okay. फिर perpetual succession, member may die, member may change, member may come, member may go, but the company goes on until it is wound up on the ground specified by act. The shares may change the hands, but it does not affect the existence of the company, and law alone can bring end to its life. It is not affected by death or insolvency of its members. Okay. लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स, लिमिटेड लायबिलिटी में कितनी रहेगी, उसके नॉमिनल वैल्यू या फेस वैल्यू तक ही रहेगी. द कंपनी कैन नॉट आस्क टू फर्दर मनी अबाउट द वैल्यू ऑफ द अनपेड शेयर्स और द नॉमिनल वैल्यू. इट इज नॉट अलाउड. लिमिटेड बाय गारंटी में वाउंडिंग अप के टाइम पे जितना अमाउंट डिसाइड किया रहेगा उतना ही लिक्विडेशन के टाइम पे लेके आएंगे. अनलिमिटेड में जितना कंपनी मांगेगी उतना लेके आना पड़ेगा. आर्टिफिशियल पर्सन है, अदर देन नेचुरल प्रोसेस से बॉर्न हुआ है, लीगल या जुडिशियल प्रोसेस से क्रिएट हुआ है, वो इट इज क्लोथेड विद द राइट्स ऑफ एन इंडिविजुअल. सेपरेट लीगल एंटिटी है वो जो ऊपर हुआ. और इसमें इसका डिस्टिंग फीचर क्या है, इट कैन नॉट गो टू जेल, टेक अ ओथ, marry or practice a learned profession, and it's a legal person in its own sense. It is artificial person to act only through agency, that is directors. Direct cannot control the affairs of the company but only act as its agents, and are not agents of the members of the company, and can only act through common seal, and do can what authenticate its formal acts. अभी कॉमन सील के लिए मैंने चार्ट बनाया है, इधर देखो. कॉमन सील पहले 2000 पहले किसके पहले कंपलसरी था, कंपलसरी टिल 2015. उसके बाद अमेंडमेंट आया तो ऑप्शनल होगा. तो जो कंपनी के पास कॉमन सील था वो जो डॉक्यूमेंट पे रिक्वायर है उस पे लगेगा, बाकी तुम ये फॉलो कर सकते हो. और जिसके पास कॉमन सील नहीं है उस पर 2 डायरेक्टर साइन करेंगे और एक डायरेक्टर और एक कंपनी सेक्रेटरी साइन करेगा, अगर तुम्हारे पास कंपनी सेक्रेटरी है तो. ठीक है. दैट्स डन फॉर टुडे, आई गेस.